السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اپنا قرآن جرنل کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے چھوٹا سا ٹیبل جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ اپنا ہی قرآن شیئر کروں گی، کیونکہ ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ اپنے قرآن میں کیسے نوٹس بناتی ہیں۔ سب سے پہلے جو نوٹس ہوتے ہیں قرآن پہ بنانے کا فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے، پہلے ہم اس پہ بات کریں گے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اپنا کوئی قرآن پڑھتے ہو، مصحف پڑھتے ہو، تو آپ کو آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ ہی آپ کو اس کی ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر جو ہے وہ یاد رہتی ہے، مین پوائنٹس یاد رہتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنے نوٹس بناتی تھی اس قرآن کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اس قرآن کے اوپر بنانے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ یہ ہمیشہ میرے پاس ہوتا تھا، تو اور آپ کو بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہیں۔ اس طریقے سے میں نے بہت ساری جو ہے وہ اپنے اسٹیکی نوٹس جو ہیں ان کے ذریعے بھی اور بک مارک کے ذریعے اپنے مین پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ اگر مجھے سڈنلی کوئی بھی بات یاد کرنی ہو تو میں اس پیج کو اوپن کروں گی اور میں اس پیج پہ پہنچ جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے احسن الکلام، جو کہ شاید آپ لوگوں کے پاس ہو، ایسے میں نے اسٹیکی نوٹس لگائے ہیں اور اس کے اوپر میں نے اپنے نوٹس بنائے ہیں، اور نوٹس میں بہت ساری آیات جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی، اس طریقے سے میں نے لکھ کر رکھی ہوئی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، میں نے بہت سارے نوٹس، اپنا پہلا کورس بھی ایون اسی مصحف کے اوپر کیا تھا۔ یہاں پر میں نے کچھ دعائیں اور کچھ کوالٹیز اپنے قرآن کو کھولنے سے پہلے وہ لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے چلتے ہیں، یہ بہت ہی نازک قرآن ہے، اور یہاں پر سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کی یہاں پر تفسیر جو کہ لکھی گئی ہے، اور اس طریقے سے میں نے نوٹس بنائے ہیں۔ اچھا، میں نے اسٹیکی نوٹس میں بہت زیادہ جو ہے میری قرآن جرنل ایسا نہیں ہوتا کہ میں بہت سارے پیجز کے اوپر جو ہے وہ نوٹس بناؤں، مجھے یہ چیز مشکل لگتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے ان تمام پیجز کو سنبھال نہیں سکتے ہو، تو میں اسی طریقے سے اپنے نوٹس بناتی ہوں، اور زیادہ سے زیادہ صرف اور صرف اسٹیکی نوٹس جو ہیں وہ یوز کر کے، اور اس طریقے سے آپ کو بہت سارے قرآن کے اوپر چیزیں نظر آئیں گی جو کہ میں لکھتی رہتی ہوں، اور جہاں پر سپیس ہوتی ہے میں اس کو ایڈ کر دیتی ہوں۔ یہاں پر میں نے لیڈ پینسل سے بھی لکھا ہوا ہے، کچھ میں نے تھیم کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، لیکن قرآن چھوٹا ہے، پاکٹ قرآن ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر اتنی ساری چیزیں نہیں آتی، لیکن جتنا پاسبل ہوتا ہے میں اس کے اوپر لکھ لیتی ہوں۔ اور اگر مجھے لگے کوئی بہت شارٹ کورس ہے جو کہ آپ کر رہے ہو یا پڑھ رہے ہو، تو اس سے آپ جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے نوٹس کو کمپلیٹ بھی کر سکتے ہو۔ تو ایسے میں نے اپنی آیات کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جو آیت مجھے امپورٹنٹ لگتی ہے اس کے بارے میں۔ لیٹس سپوز یہاں پر اب روزوں کی فرضیت ہے، تو یہ آیت جو کہ رمضان میں روزوں کی فضیلت کے بارے میں سورہ البقرہ میں آتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ آیت میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے۔ یہاں پر وصیت کے بیان ہیں، یہاں پر بہت سارے میں نے نوٹس بنائے ہیں، اور اس آیت میں نے جو اشد حب للہ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، مین پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اس آیت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کو پورا قرآن جو ہے وہ نظر آتا ہے، جس میں بہت ساری یہ لاسٹ پارہ اور یہ میرا اسٹیکی بک مارک، اور یہ بہت ساری میں نے دعائیں یہاں پر نوٹ کی ہوئی ہیں۔ یہاں پر یہ قرآن کھل بھی چکا ہے، لیکن میں اس کو لگاؤں گی کم، کیونکہ یہ بہت ساری ریزن کی وجہ سے بہت نازک ہے، اس کی بائنڈنگ چینج نہیں ہو سکتی، تو یہ بار بار کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعائیں جو کہ میں نے یہاں پر لکھ کر لگائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں یہاں پر، یہ زیادہ دعائیں ہی ہیں آپ کو ملیں گی جو کہ میں نے اپنے لیے لکھ کر یہاں پر رکھی ہیں، اور یہ لاسٹ پارہ تھا جس کی تفسیر کے کچھ پوائنٹس آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے سورہ تکویر کے بارے میں، اور اسی طریقے سے ڈیفرنٹ سوراز یہاں پر ہوں گی، اور ان کے میں نے پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو میرا ایک پاکٹ قرآن ہے جو کہ احسن الکلام ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں اپنا، کیونکہ یہ میرا ہینڈی ہے، میں اس کو ہمیشہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتی ہوں جب بھی میں ٹریول کرتی ہوں۔ اچھا، یہ قرآن سیکنڈ قرآن جو موسٹ امپورٹنٹ میرے کورس کا بھی تھا، تعلیم و دین کا، یہ قرآن میں نے خود ڈیزائن کرایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، اب اس قرآن کو دیکھنے کے بعد جو بھی سوال آئے آپ کے مائنڈ میں کہ ہمیں یہ قرآن مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، یا اس کے علاوہ یہ کہ یہ قرآن ہمیں کہاں سے ملے گا، یہ قرآن جو ہے اس میں پیجز آپ کو نظر آئیں گے جو کہ وائٹ قرآن کے ہیں، جو اساتذہ کے پیج پر بھی موجود ہیں۔ یہ قرآن میں نے اپنا خود ڈیزائن کرایا تھا ود اساتذہ کی پرمیشن کے ساتھ، اسپیشل اپروول کے ساتھ، تو اس لیے یہ مارکیٹ میں نہ اویلیبل ہوگا۔ جب میں نے اس کو سٹارٹنگ میں شیئر بھی کیا تھا تو مجھے یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ ہمیں
भी चाहिए ये सेम कुरान, बट इसकी परमिशन नहीं है। सो मैं ये आपके साथ ना शेयर कर सकती हूँ, ना आपको बनवा के दे सकती हूँ। इसका डिज़ाइन ख़ुद फाइनल किया था, ख़ुद ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाया था और सारी चीज़ें ख़ुद फाइनल की थी, ठीक है। उस कुरान के साथ ये ऐसे गोल्डन फॉइल लगवा कर और यहाँ पर हर पेज के पारा से पहले एक आयत, एक हदीस लिखी गई है। आगाज़ अल्लाह के नाम से किया गया है। यहाँ पर आपको हदीस नज़र आती है, हदायत देने वाली किताब। सो ये कुरान बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद था कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये कुरान जो है वो आपके लिए सदका जारिया होना चाहिए कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट अपने कुरान पर भी की। तो मुझे ऐसे कुरान बहुत पसंद हैं, इसीलिए आपके लिए शॉप पर भी जो है वो कुरान स्पेशल बनवाए जाते हैं, उनकी बाइंडिंग स्पेशली चेंज कराई जाती है कि वो खूबसूरत लगती है, ठीक है। इस तरीके से ये सूरत का नाम आ रहा है जो कि इस पूरी बाइंडिंग में आपको नज़र आएंगी। और आगे मैंने नोट्स जो बनाए हैं वो मैं दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर भी मैं एग्जैक्ट स्टिकी नोट्स ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये पेज मैंने जो है कलर पेजेस होते हैं, मैंने उनको लेकर अपने नोट्स को बनाया है क्योंकि स्पेस मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखवाई थी। लेकिन फिर भी जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो क्या होता है कि स्पेस कम पड़ जाती है, और इसी वजह से जो कुरान जर्नल करते हैं मैं कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें चाहती हूँ कि मेरे पास थोड़ी जगह में ज़्यादा चीज़ें मैनेज हो जाएं। तो मैं ज़्यादा पेजेस नहीं यूज़ करती कि एक आयत के लिए एक सिर्फ पेज, मेरे लिए मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी देखें राइटिंग नज़र आ रही होंगी, चीज़ें कुछ हाईलाइट की गई हैं, कुछ लाइट। और इवन मज़े की एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखें मैंने इसके नीचे भी नोट्स बनाए हैं और इस तरीके से जो है वो मैंने स्टिकी नोट्स को यहाँ पर ऐड किया है ताकि मैं किसी भी स्पेस को ज़ाया नहीं करूँ। और यहाँ से मेरा पारा 1 शुरू होता है जिसके लिए भी हदीस हमने ये सामने आपके नज़र आ रही होगी, सुनन तिरमिज़ी की, कुरान मजीद के एक हरफ की तिलावत का अजर। तो इसके लिए यहाँ पर भी आपको सूरह फातिहा का थीम यानी कि सूरह फातिहा आगे स्टार्ट हो रही है कुरान में। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कुरान में ज़्यादा आपको कलर्स या स्टिकी नोट्स ही नज़र आएंगे जिनकी हेल्प से मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। ये रहा सूरह फातिहा, उसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड देन कुछ मेन पॉइंट्स, उसका ये सारे नोट्स जो कि शायद सिर्फ मुझे ही समझ आ सकते हैं क्योंकि मैंने लिखे हैं। इसी वजह से आप लोगों को शायद थोड़ा सा मुश्किल हो रही हो, लेकिन मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं कि मैं ज़्यादा चीज़ों को एक साथ सेव कर सकूं। और ये सूरह फातिहा की इन डेप्थ स्टडी भी है, इसमें कुरान तफसीर भी है, डिफरेंट उस्तादों का इल्म भी मैंने महफूज किया। इसके अलावा जो डिफरेंट तफसीर हैं जैसे अहसनुल बयान है, इसके अलावा तफसीर सादी है और इसके अलावा तफसीर इब्न कसीर है। तो सबको पढ़ते हुए जो चीज़ें आपके माइंड में आती हैं आप उनको सेव करते जाते हो तो आपको पढ़ाने में बहुत आसानी होती है। इसलिए मैं नोट्स इसीलिए एक जगह पर लेती हूँ कि जब मुझे पढ़ाना पड़े तो मुझे मुश्किल नहीं आए, मैं जगह जगह से अपनी नोटबुक्स नहीं उठाऊँ, मैं एक ही बुक खोलूँगी और मैं वहीं से अपने नोट्स को रिवाइज़ कर लूँगी कि मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर भी मैंने सारा तावुज़ के बारे में जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, ये नोट्स बनाए हुए हैं। और इसी तरीके से जब आप अगले पेज पे जाते हो तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कोर्स का कुरान भी है। इसके अलावा मैंने इसको इसी माइंडसेट के साथ बनाया था कि ये ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसी के ऊपर काम करना है और इसी को अपने लिए सदका जारिया बनाकर छोड़कर जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके से आपको आगे भी मेरे नोट्स नज़र आएंगे। मुनाफिक की जो है वो खसूसियात क्या है मुनाफिक की, उसके बारे में यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं। अल्लाह को धोखा देता है, उनके दिलों में मर्ज़ होता है, झूठ बोलते हैं, ज़मीन फसाद फैलाते हैं। तो ये इस तरीके से मैं शॉर्ट पॉइंट्स जो है ना मेन पॉइंट्स लिख लेती होती हूँ अगर किसी आयत के बारे में आपको जल्दी एक्सप्लेन करना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नोट्स बनाए हुए हैं और ऐसे आयत लिखी गई हैं जो कि आप सबके सामने हैं। और इसी तरीके से फिर जब ये पारा एंड होगा तो पारे के एंड पे क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी मैंने जो है वो कससुल कुरान के नोट्स यहाँ पर सेव किए हुए हैं। और जब पारा एंड होता है तो उसके बाद क्या होता है वो दिखाती हूँ आपको। यस, ये देखें जब सेकंड पारा आता है तो इसी तरीके से इस पारा के बारे में भी एक हदीस यहाँ पर मेंशन की गई है। हर पारे से पहले इस तरीके से उसको जो है वो सेंटर में एक प्रिंटेड पेज जो कि कलर्ड पेज है उसको ऐड किया गया है। और इस तरीके से फिर जो है हमारा सेकंड पारा यहाँ पर इस पेज के साथ यहाँ पर ये स्पेशल पेज लगवाया गया इतने ज़्यादा पेजेस को रख कर कि ताकि हमें नोट्स बनाने में मुश्किल नहीं हो। यहाँ पर सेकंड पारा स्टार्ट हो रहा है और इसी तरीके से आगे हमारे जो है वो 5 पारे कंप्लीट होते हैं। और इसमें क्योंकि 5 पारे हैं और
5 पारों के बाद ये बाइंडिंग जो है वो एंड होती है। इसी तरीके से ये हमारा तिल का रसूल आ गया पारा। और जब मैं इसके भी नोट्स बना रही हूँ तो अब मैं यहाँ पर भी जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ कि कौन सी आयत, क्योंकि अभी मैं एक कोर्स कर रही हूँ, उसके नोट्स तैयार कर रही हूँ ताकि फिर जब उसको किया जाए तो कोई भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से जो है वो उनको देख लो। तो ये एक छोटा सा आप सबके साथ शेयरिंग थी कि जिनको नोट्स बनाने नहीं आते तो वो इस तरीके से भी कुरान पर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हों तो ही आप जो है वो अपने आप को इस पर मेहनत कर सकते हो। आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है, देखें लेने को बहुत कुछ हम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जितना आपके पास अवेलेबल है, ये कुछ पेजेस आपको खाली नज़र आ रहे होंगे, इनके नोट्स जो हैं वो कहीं और लिखे होंगे और इसी वजह से यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से ये कुरान एंड पे, इसके अलावा जो दूसरी वाली साइड है उस पर मैंने ये हदीस लिखी है जो कि मेरी ऑलमोस्ट 5 बाइंडिंग है इस कुरान की, और उन सब के एंड पे यही है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और स्टार्टिंग में जो है वो आपकी हर पारे के पहले डिफरेंट हदीस है। तो मैं आपसे बात ये कर रही हूँ कि देखें आपके पास जो कुछ भी मौजूद है, मेरे पास सबसे पहले ये कुरान था, ठीक है, मैंने इसके ऊपर नोट्स बनाए। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास अगर कोई बहुत अच्छा कुरान आएगा, बहुत ही खूबसूरत होगा तो मैं नोट्स बनाऊंगी, नहीं, जो अवेलेबल है उसके ऊपर बनाइए। और मुझे इसके ऊपर नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा पॉकेट कुरान है और मेरे हैंड बैग में हमेशा रहता है, तो ये आपको बहुत ईजी रहता है और आपकी बहुत मदद रहती है जब भी आपको किसी को गाइड करना पड़े। लेट्स सपोज किसी को कोई आयत कोट करनी पड़े, यहाँ पर इवन मैं आपको सिर्फ आपकी आसानी के लिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने स्पेशल आयत के नाम लिखे हैं कि कौन सी आयत कुरान में कहाँ मौजूद है। अगर तयम्मुम के बारे में है तो सूरह निसा में है। कुछ राइटिंग बहुत आगे पीछे हो ज़रूर सकती है, लेकिन राइटिंग पे गौर व फिक्र नहीं करना। असल बात क्या है कि हमने अपने कुरान को तैयार कैसे करना है। ये कुरान खूबसूरत लगता है और ये बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत प्यारा है, और इसी तरीके से आप लोग अपना कुरान तैयार कर सकते हैं। आपके पास जो कुरान है, आपके पास सिंपल कुरान है, अगर आपके पास ऐसा पॉकेट कुरान नहीं है तो पॉकेट कुरान आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। देखें ये वाला जो पॉकेट कुरान है, मेरे एहसनुल कलाम के बाद मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट ये कुरान लगता है जो कि आपको शॉप पर नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सबीलुल कुरान फाउंडेशन की तरफ से ये लास्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ था, लेकिन ये देखें ये ऐसा है, आप लोग इस पर भी नोट्स बना सकते हो। और अगर इसके अलावा आपको ये वाला चाहिए, ये भी आपको SKF शॉप से मिल जाएगा। और अगर आपको ये वाला कुरान चाहिए जो कि विद ट्रांसलेशन है, ठीक है, जिसमें ट्रांसलेशन भी मौजूद है, तो आप लोग अपने इस कुरान पर जो है ना वो अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। तो देखें इनकी बाइंडिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारी मुझे लगती हैं, और जो आपके पास कुरान है वो भी बहुत प्यारा है। कुरान सारे ही बहुत प्यारे हैं, बस हमने उनको मज़ीद खूबसूरत करना है अपने अमल से और अपनी मेहनत से, और अब उसको अपने पास रखने के लिए और अपने लिए सदका जारिया बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह होपफुली ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी। और सबसे अहम चीज़ मैं आपको इस वीडियो में लेसन देना चाहूँगी कि आपने किसी की चीज़ को देखकर पहले तो माशाल्लाह बोलना होता है। सेकंड थिंग, आपके पास जो भी है आप उस पर खुश रहिए। देखें ये कुरान के मैंने बहुत सालों बाद ये कुरान बनाया था। अगर आपको ये कुरान अच्छा लगे तो आपने बारकल्लाह फ़ीक बोल देना है, और अगर आपके पास जो भी कुरान है आप उसको ऐसा बना सकते हो। आप अदरवाइज़ आप वाइट जो पाराज हैं, ये वाइट कुरान है अल-हुदा का, वो भी ख़रीद सकते हो, ठीक है, और ख़रीद कर जो है वो आप अपने नोट्स सिंगल पारा की शक्ल में, सिंगल पारा भी हैं, बाइंडिंग्स भी हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको बनाएं और उसके ऊपर अपने नोट्स बनाएं और अपनी ज़िंदगी को बदलें, क्योंकि ये आपकी मेमोरी है, ये आपका सदका जारिया है। कुरान वो वाहिद किताब है जो कि आपके साथ क्या है, कब्र में भी जाती है, जो मैदान महशर में भी जाएगी, जो आखिरत में भी जाएगी, जो हमेशा आपके साथ रहेगी। ये वो साथ है जो कभी नहीं आपका छोड़ेगा। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला आपने कुरान अपनी जर्नलिंग अगर करनी है, जैसे आपको अच्छा लगे, अगर आपको नोटबुक पे अच्छा लगे नोटबुक पे करिए, कुरान पे अच्छा लगता है कुरान पे करिए, लेकिन आपने अपने कुरान को खूबसूरत और मुज़य्यन बनाना है, अपने अमल से भी, अपनी आवाज़ों से भी, और उसकी खूबसूरती को बढ़ा कर भी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा तो इंशाअल्लाह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में खास याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।